Good morning, students. Today we are here with a new topic of writing skill is advertisement. Dear, this topic has not been taught you in your previous classes because this topic was not included in previous classes. Dear, it is compulsory when you are class in 11th to improve and enhance your writing skills with the practice of your class curriculum writing skills. So we are here with the new topic is advertisement. Here there are two types of advertisements. First is classified, second is displayed. But from today's class we will discuss about only classified advertisement. And this topic usually asked in CBSE board examination. So we start with the topic name is situation vacant. Before starting this topic, I brief you, I tell you the meaning of situation vacant. There you have seen the newspaper like the Amar Ujala, the Times of India, the Hindu, the Hindustan Times newspaper, where you can see this column name is situation vacant. There any organization, any institution, any university, college, etc. requires a few employees for its organization, institution, college, school, etc. Then they give such advertisements in the column of situation vacant in local newspaper, national newspaper. ये सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है कि किसी कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज की ज़रूरत है, उस कंपनी को कुछ एम्प्लॉइज को हायर करना है, अपॉइंट करना है, तो वो किसी लोकल न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं विज्ञापन, और उस एडवर्टीजमेंट की हेल्प से लोग उस organization, institution, university, college, school, etc. where the post is lying vacant कांटेक्ट करते हैं. डियर, सिचुएशन वैकेंट को लिखने से पहले हमें कुछ वैल्यू पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए. वैल्यू पॉइंट्स क्या है कि हम सिचुएशन वैकेंट राइटिंग स्किल के टॉपिक को लिखने के लिए किन किन पॉइंटों की जरूरत पड़ती है. First point, name of organization. Second point, address where the organization is situated. Number of advertisement means number of advertisement means to say number of vacancy is being laid vacant in that organization. Third point, name of vacancy. Name of vacancy का मतलब होता है पोस्ट का नाम, जैसे सीनियर मैनेजर, अकाउंटेंट, इंजीनियर. नंबर ऑफ वैकेंसी, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी वैकेंट है, दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसी. एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जरूरत या जरूरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. प्रेफरेंस मेल या फीमेल, किसको आप प्रेफरेंस देंगे, मेल को या फीमेल को. आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते, या मेल या फीमेल कोई भी हो लेकिन डिजर्व करता हो उस पोस्ट के लिए. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एज, ग्रोथ, एक्सपीरियंस. सैलरी एंड पर्क प्रॉमिस्ड. पर्क क्या होता है, पर्क होता है इंसेंटिव, हम कह सकते हैं कमीशन. इंसेंटिव. वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, 10 आवर्स, whatever the organization
is taking work of any employee, that you have to mention there the number of hours, contact number at last. Dear, अब आते हैं हम सिचुएशन वैकेंट लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में सिचुएशन वैकेंट लिखना है। इज इट क्लियर? सिचुएशन वैकेंट लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। यहाँ पे आप विद्यानंद पब्लिक स्कूल भी लिख सकते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल भी लिख सकते हैं। अमृतसर कहाँ पर है मैंने वो भी लिखा है, आप यहाँ होडल करमल लिख सकते हैं, पलवल लिख सकते हैं। एफिलिएटेड टू स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE, जिस बोर्ड से एफिलिएट है वो लिखेंगे आप। अर्जेंटली रिक्वायर्ड, अर्जेंटली रिक्वायर्ड जैसे शब्दों को आपको लिखना है। 1 PGT इन केमिस्ट्री, PGT मीन टू से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एक केमिस्ट्री का टीचर चाहिए। 2 PGT इन इंग्लिश, 2 PGT इंग्लिश चाहिए। 2 PRT, PRT मतलब प्राइमरी टीचर इन मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस की चाहिए। ऑल्सो नीडेड पार्ट और फुल टाइम कोचिंग फॉर कराटे, फुटबॉल, cricket. Only young, energetic, trained, experienced teachers having good academic record, जिनका academic record अच्छा रहा हो। Excellent fluency in English, English में fluency अच्छी हो, communication well and good हो। May attend interview with resume, वो अपने resume के साथ इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं on Sunday 28 May 2021 at 8:30 AM and principal office. No TA DA, TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, DA का मतलब DNS अलाउंस। सैलरी नो कॉन्स्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, और जो सैलरी है कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है नो बार, नो लिमिट। अगर कैंडिडेट डिजर्व करता है अकॉर्डिंग टू द organization rule and regulations, so definitely there is no limit of salary for deserving candidates. Dear, इसी तरीके से हम राइटिंग स्किल के सारे टॉपिक करेंगे। सभी बच्चे इनको नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि आपको टाइम दिया जाएगा कि किस दिन आपको स्कूल आकर के अपनी नोटबुक चेक करानी है। ठीक है, ऑनेस्टली आप अपना काम करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सिचुएशन वैकेंट का क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 से 4 सॉल्व क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको अनसॉल्व असाइनमेंट दिया जाएगा। आप उस अनसॉल्व असाइनमेंट को इस वीडियो के बिहाफ पर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।